Discussing the Yojana 2023 March 2023. The topic for today's video is social sector allocations, endeavor for effective outcomes. Strengthening and expanding the social sector in the country has always been the priority of the government, and this reflects in this year's budget as well. In the nutrition sector, the proposal development action plan for the STs would provide access to nutritious food to travel groups. At the same time, PM Garib Kalyan Anna Yojana is another step in promoting nutrition. Another important initiative, PM Poshan Shakti Nirman, has also received a significant budgetary allocation. Several measures have been announced in the budget for the effective implementation of the provisions of the new education policy and skilling. स्ट्रेंथन करना और एक्सपांड करना सोशल सेक्टर को, सामाजिक सेक्टर को देश के, वो प्रायोरिटी रही है सरकार की, और ये रिफ्लेक्ट करता है ईयर के इस साल के बजट में. ये न्यूट्रिशन सेक्टर में जो प्रपोज डेवलपमेंट एक्शन प्लान है एसटीज के लिए, वो एक्सेस देगा न्यूट्रिशियस फूड को, ट्राइबल ग्रुप्स को न्यूट्रिशन फूड का एक्सेस देगा. और उसी समय पर पीएम गरीब कल्याण अन्ना योजना अनदर स्टेप है प्रमोट करने के लिए न्यूट्रिशन को. अनदर इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव, उसके अलावा दूसरा इनिशिएटिव क्या है, पीएम पोषण शक्ति निर्माण. ये इसको मिला एक सिग्निफिकेंट बजटरी एलोकेशन मिला है. सेवरल मेजर्स जो हैं वो अनाउंस किए गए बजट में इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, प्रीवियस जो प्रोविजंस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और स्किलिंग के. This year again, the efforts by the Finance Minister Nirmala Sitharaman for evolving capital expenditure-led economic growth strategy has been widely appreciated. Capital expenditure in the 2023-24 union budget has been doubled from 4.26 lakh crore under US billion 50 US dollar under US dollar 58.2 billion dollar of actual expenditure in 2021 to rupees 10.01 lakh crore, 122 billion dollar budgeted in 2023-24. इस साल में वापस से फाइनेंस मिनिस्टर जो है, एफर्ट्स जो फाइनेंस मिनिस्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर को डेवलप करने का, कैपिटल एक्सपेंडिचर लेड इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी को डेवलप करने का वाइडली अप्रिशिएट किया गया. कैपिटल एक्सपेंडिचर 23-24 में, फाइनेंशियल 23-24 में यूनियन बजट ने डबल कर दिया. 4.26 लाख करोड़ रुपए एक्चुअल एक्सपेंडिचर का जो हुआ है 20-21 में, वो 10 लाख करोड़ रुपए जो बजट किया गया था 23-24 में. कैपिटल एक्सपेंडिचर इन 2023-24 यूनियन बजट हैज़ बीन डबल फ्रॉम रुपीज़ 4.26 लाख करोड़ ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन 2021 टू रुपीज़ 10 लाख करोड़ budgeted in 23-24. States have been encouraged to follow the same path and supplemented the national efforts. Budget for 23-24 provides a window of rupees 1.3 lakh crore of interest-free loans to state for capital expenditure. This is happening along with ever-expanding social sector outlays. The mantra of facilitating access and ensuring inclusion in the social sector allocation has continued in the fifth budget by the finance minister. यानी बजट ने क्या किया है, ये स्टेट को एनकरेज किया गया है कि वो एक ही पाथ पे चले, उस पाथ पे चले और सप्लीमेंट करे नेशनल एफर्ट्स को. कौन से पाथ पे चले, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो राज्य सरकार के लिए, ये बताया गया. बजट जो है 23-24 का एक विंडो भी देता है कि 1.3 लाख करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे देते हैं. लो राज्य सरकार तुमको ले दिया 1.3 लाख करोड़ रुपया, कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो. ये हो रहा है सोशल सेक्टर आउटले की एक्सपांशन से. जो मंत्र है आसान बनाने का, एक्सेस और इंश्योर करने का, इंक्लूजन का सोशल सेक्टर एलोकेशन में, वो कंटिन्यू किया जा रहा है पांचवें बजट के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के 5वें बजट के साथ. ऑलमोस्ट ऑल द बजटरी स्कीम्स डिजाइंड फॉर सोशल सेक्टर हैव ऑल्सो मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन without losing efficacy in the quest for universalization of many schemes. A slew of measures have been taken for inclusive development. Under critical schemes leading to many important social sector achievements, the budget has also explored the possibility of enhancing complementarities across schemes for better outcomes. Social sector outlay, with rising per capita income and size of the national economy moving towards the national goal of $5 trillion by 26-27, the focus is on the development of social sector to ensure a better quality of living
a life of dignity, and expansion of the economy. The per capita income has more than doubled to rupees 1.97 lakh. Expenditure for this sector has witnessed significant increase from 3.53 lakh crore in 15-16 to 7.9 lakh crore in 22-23. Considering the latest budget, the annual average growth rate for the social sector spending would be around 14.1% from 15-16 to 23-24. Accomplishments since 2014 are now also discernible across sectors, with nearly 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, 9.6 crore beneficiary with LPG connection under Ujjwala. The number of people with Jan Dhan bank account stands at 47.8 crore, facilitating cash transfer of rupees 2.2 lakh crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi, with more than 220 crore COVID vaccinations. Nearly 102 crore persons are benefited. Insurance cover for 44.6 crore person under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana is accomplished. Health. The budget for the year 2023-24 indicates a significant trend, as there is an increase in expenditure on health as percentage of GDP from 1.4% to 2.1%, 1.4% in 1920 to 2.1% to 22-23. There has been a substantial increase in the expenditure on health sector of the Union government. It has increased from rupees 24,041 crore in 15-16 to 58,119 crore in 23-24. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJAY, launched in 1819, has emerged as a flagship program. Its citizens provided quality health care for secondary and tertiary care hospitalization through a cover of up to 5 lakh per family per year. This is now the world's largest government funded healthcare program, targeted over 50 crore beneficiaries. Towards it, the BE provision for 23-24 is over rupees 7,200 crore, showing over 2.6 times increase since 1819 when the scheme was launched. Among the new initiative of Amrit Kal, it is proposed to eliminate anemia by 2047 by intervention like awareness creation, universal screening, etc. of over 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in the affected tribal areas, and counseling them through synergized effort of central minister and state government. A special scheme namely Sickle Cell Anemia Elimination Mission would be launched. Sickle cell disease (SCD), through at times associated with particular geographic region or specific group of people, is actually a common inherited blood disorder. The government has also announced the establishment of 157 new nursing colleges in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. According to WHO study 2022, India would require at least 4.2 million more trained nurses by 2024 to care for its over 1.44 billion expected population. It is also proposed to launch a new program during 23-24 to promote research and innovation in pharmaceuticals. Private sector would also be encouraged to invest in some specific priority areas. तो बात क्या कर रहे हैं हम लोग सोशल सेक्टर आउटलेज की. हम लोगों ने बताया हेल्थ के बारे में, हम लोगों ने बताया न्यूट्रिशन के बारे में. तो सोशल सेक्टर आउटले की बात करी जाए तो राइजिंग पर कैपिटा इनकम के साथ में जो साइज है नेशनल इकोनॉमी का, वो मूव कर रहा है नेशनल गोल का 5 ट्रिलियन US डॉलर का इकोनॉमी बनाने का 26-27 तक. फोकस है डेवलपमेंट पर सोशल सेक्टर की. इंश्योर करना है कि बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग देना है सब सिटीजन को, डिग्निटी का ज़िंदगी, इकोनॉमी का एक्सपांशन करना है. जो पर कैपिटा इनकम है वो डबल्ड हो गया है, 1.97 लाख हो गया है. एक्सपेंडिचर जो है सेक्टर का, उसने जो खर्चा है जो सेक्टर का विटनेस किया है, बहुत बढ़ोतरी मैंने इंक्रीज विटनेस किया है. 15-16 में जो एक्सपेंडिचर 3.53 लाख करोड़ था वो 22-23 में 7.9 लाख करोड़ हो गया. कंसिडर करते हुए लेटेस्ट बजट को, जो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट है सोशल सेक्टर का स्पेंडिंग का, वो अराउंड 14.1% होगा. 15-16 से 23-14 में वो इतना ग्रोथ होगा. एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है सोशल सेक्टर का स्पेंडिंग वो होगा 14.1% फ्रॉम 15-16 से 23-24 के मतलब में बढ़ा है. अकॉम्प्लिशमेंट्स जिस 2014 से अभी तक वो डिसर्निबल है सेक्टर्स में. नियरली 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स जो हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए.
9.6 करोड़ बेनिफिशियरीज को एलपीजी कनेक्शंस दिया गया उज्ज्वला स्कीम के तहत। बहुत नंबर ऑफ पीपल, जन धन अकाउंट्स का जो नंबर है वो 47.8 करोड़ है, जिसमें कि फैसिलिटेट किया जा रहा है कैश ट्रांसफर 2.2 लाख करोड़ का ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर जिसमें कि फैसिलिटेट किया जा रहा है, कैश ट्रांसफर दिया जा रहा है। 2.2 लाख करोड़ रुपए का कैश ट्रांसफर हुआ है। 11.4 करोड़ किसानों को इतना पैसा ट्रांसफर हुआ है। 2.2 लाख करोड़ पीएम सम्मान, किसान सम्मान निधि के तहत। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन से ऊपर नियरली 102 करोड़ लोगों को बेनिफिट किया गया है। 220 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशंस लगाए गए हैं 102 करोड़ लोगों को। इंश्योरेंस कवर 44.6 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस कवर दिया गया है पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत। हेल्थ की बात करें तो 23-24 में जो बजट है जो बनाया गया वो बता रहा है, सिग्निफिकेंट ट्रेंड बता रहा है कि इंक्रीज होगा खर्चे में, हेल्थ के खर्चे में। एक परसेंटेज जीडीपी का 1.4% 19-20 में जो था उसको 2.1% 22-23 में कर दिया गया। एक सब्सटेंशियल बढ़ोतरी हुई है, बहुत भयंकर बढ़ोतरी हुई है एक्सपेंडिचर हेल्थ सेक्टर के अंदर में, यूनियन गवर्नमेंट के हेल्थ सेक्टर के अंदर में। ये 24,041 करोड़ रुपए से जो 15-16 में एक्सपेंडिंग होती थी 24,000 करोड़ से 58,119 करोड़ रुपए स्पेंडिंग होने लगी है 23-24 में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY, AB फॉर आयुष्मान भारत, PM प्रधानमंत्री, JAY में जन आरोग्य योजना, ABPMJAY जन आरोग्य योजना लॉन्च किया गया 18-19 में। वो निकल के आया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम। हर एक नागरिकों को क्वालिटी हेल्थ केयर दिया गया सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, जिसमें कि एक कवर 5 लाख रुपया एक फैमिली 1 साल के लिए उठा सकती है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसमें कि 50 करोड़ बेनिफिशियरी को टारगेट किया गया। इसके बीई प्रोविजन जो 23-24 का वो 7,200 करोड़ लोगों को over 7,000 towards its B provision for 23-24 is over 7,200 crore, showing over 2.6 times increase since 18-19 when the scheme was launched. नया इनिशिएटिव के साथ में जो अमृत काल के लिए प्रपोज किया गया है कि एनीमिया को 2047 तक 2047 तक एलिमिनेट किया जाएगा। इंटरवेंशन से, जैसे कि अवेयरनेस क्रिएशन से, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग से 7 करोड़ लोग जो है जिसका एज 40 साल तक का है अफेक्टेड ट्राइबल एरियाज में, उसको काउंसलिंग दिया जाएगा सिनर्जाइज्ड एफर्ट्स के जरिए से सेंट्रल मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट के। स्पेशल स्कीम जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को लॉन्च किया जाएगा। सिकल सेल डिजीज SCD, सिकल सेल डिजीज जो है वो पर्टिकुलर ज्योग्राफिक रीजन से एसोसिएटेड था, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों से एसोसिएट था। एक्चुअली एक कॉमन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। SDC सिकल सेल डिजीज, ये सिकल सेल डिजीज जो है पर्टिकुलर ज्योग्राफिक रीजन या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों के साथ एसोसिएटेड था। एक्चुअली ये कॉमन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए 157 नया नर्सिंग कॉलेजेस कोलोकेशन में, जिसमें कि एग्जिस्टिंग 157 मेडिकल कॉलेजेस के साथ। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस इन कोलोकेशन विद द एग्जिस्टिंग 157 मेडिकल कॉलेजेस established since 2014। यानी 157 जो मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी established है उसके साथ में 157 नया नर्सिंग कॉलेजेस भी स्टार्ट करेगा सरकार। अकॉर्डिंग टू WHO स्टडी 2022 इंडिया जो है उसको एटलीस्ट 4.2 मिलियन और ट्रेंड नर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी 2024 तक केयर करने के लिए 1.44 बिलियंस एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन को। It is also proposed to launch a new program during 23-24 to promote research and innovation in pharmaceuticals। प्राइवेट सेक्टर जो है उसको एनकरेज किया जाएगा कि वो स्पेसिफिक प्रायोरिटी एरिया में इन्वेस्ट करे। न्यूट्रिशन बजट मेड एफर्ट्स फॉर इंक्लूजन at all levels in the nutrition sector। The proposed aspirational block program covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains would also include nutrition। Proposed rupees 15,000 crore development action plan for the scheduled tribe would also provide nutritious food to vulnerable tribal groups।
Similarly, PM Garib Kalyan Anna Yojana will expenditure of about 2 lakh crore would provide food and nutrition security to over 80 crore person for 28 months. As per the 5th National Family Health Survey, 5th National Family Health Survey, NFHS, National Family Health Survey, 2019-21, about 19.3% children below 5 years were facing wasting and 13.5% were stunted. Sri Ann is the budget. In the budget is another important step for promoting nutrition. While National Years of Millet was celebrated in 2018, India took an initiative at the UN General Assembly for declaration of 2023 as the International Year of Millet. IYOM, International Year of Millet. The budget has made provision for supporting the Indian Institute of Millet Research, Hyderabad, as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The Integrated Child Development Scheme, ICDS, Integrated Child Development Scheme, now known as Saksham Anganwadi Poshan 2.0, is allocated rupees 20,554 crore. Another important initiative, Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman, the midday meal scheme, has been provided a budgetary allocation of rupees 11,600 crore. न्यूट्रिशन की बात करी जाए तो बजट ने एफर्ट्स डाले हैं इंक्लूजन करने के लिए सारे लेवल्स पे न्यूट्रिशन सेक्टर को. प्रोपोज्ड एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कवर करता हुआ 500 ब्लॉक्स को सेचुरेट करने के लिए एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज मल्टीपल डोमेन्स में, और उसमें न्यूट्रिशन इंक्लूड करा जाएगा. प्रपोज्ड 15,000 करोड़ डेवलपमेंट एक्शन प्लान, रुपीज़ 15,000 करोड़ का डेवलपमेंट एक्शन प्लान शेड्यूल ट्राइब के लिए वो न्यूट्रिशियस फूड देगा वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को. न्यूट्रिशियस फूड देगा वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को. सिमिलरली पीएम गरीब कल्याण अन्ना योजना, PMGKAY, पीएम गरीब कल्याण अन्ना योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्ना योजना, जिसका एक्सपेंडिचर है 2 लाख करोड़ का, वो फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी देगा 80 करोड़ लोगों को 28 महीनों के लिए. 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, जो 2019 से 21 में हुआ था, 19.3% जो चिल्ड्रन है 5 साल से कम के वेस्टिंग और 35.5% स्टंटेड है. अन्न जो है श्री अन्न बजट में अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप है न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के लिए. नेशनल ईयर जो मिलेट का सेलिब्रेट किया 2018 में, इंडिया इनिशिएटिव लिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर करने के लिए. बजट को में प्रोविजन बनाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डिक्लेयर करने के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने, रिसर्च टेक्नोलॉजीज को इंटरनेशनल लेवल पर शेयर करने के लिए. बजट ने प्रोविजन बनाए हैं सपोर्ट करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को हैदराबाद में जो है उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिसर्च टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल लेवल पर शेयर कर पाए. जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इंटीग्रेटेड ICDS, जिसका नाम है सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, वो एलोकेट इसको दिया गया 20,554 करोड़ रुपये. दूसरे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, द मिड डे मील स्कीम, उसको एक बजटरी एलोकेशन दिया 11,600 करोड़ का. एजुकेशन और स्किलिंग, द एलोकेशन फॉर द एजुकेशन इन दिस बजट इज रुपीज 1,12,898 करोड़. The higher education budget is allocated rupees 44,094 crore for 23-24, a considerable increase from 40,828 crore in revised estimate for 22-23. The budget has proposed a support of 68,804 crore for school education. To cope with the learning loss during the COVID crisis, measures have also been announced for effective implementation of all the provision of the national education policy, particularly focusing on skilling. The idea is to synergize skill with economic policies to facilitate job creation at scale and to support business opportunities. For promoting good governance, attention has also been paid to the skilling of government officers and staff under the mission
Karmayogi, the integrated online training platform IGOT Karmayogi has been launched for continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrading their skills and facilitated a people centric approach. जो एजुकेशन स्किलिंग की बात करें ना, तो एलोकेशन किया गया है शिक्षा के लिए बजट में 1,12,898 करोड़ रुपए. जो हायर एजुकेशन बजट है उसको 44,000 करोड़ रुपए 23-24 के लिए दिए गए हैं, जिसमें कि एक कंसिडरेबल बढ़ोतरी हुई है 40,000 करोड़ से. रिवाइज्ड एस्टीमेट जो हुए थे 22-23 में. बजट प्रपोज किया है कि सपोर्ट दिया जाएगा. सपोर्ट बजट में एक सपोर्ट देगा. कितना का सपोर्ट देगा? 68,000 करोड़ का सपोर्ट देगा स्कूल एजुकेशन के लिए. 68,804 करोड़ का सपोर्ट. लर्निंग लॉस को के साथ डील करने के लिए जो हुआ है कोविड क्राइसिस के दौरान, मेजर्स अनाउंस करे गए. इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए सारे प्रोविजंस का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सारे प्रोविजंस का इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेजर्स अनाउंस करे गए हैं. पर्टिकुलरली स्किलिंग पे फोकस करना. आइडिया है कि सिनर्जाइज करे स्किल्स को कॉमन पॉलिसीज़ के साथ, ताकि जॉब क्रिएशन किया जा सके स्केल पर और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को सपोर्ट किया जा सके. प्रमोट करने के लिए गुड गवर्नेंस और अटेंशन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफिसर और स्टाफ के स्किलिंग पर. मिशन कर्मयोगी के तहत इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म IGOT कर्मयोगी को लॉन्च करा गया है कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लाख्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि वो अपने स्किल्स को अपग्रेड करें और पीपल सेंट्रिक अप्रोच को आसान बना सके. फोकस वुड ऑल्सो बी ऑन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स through District Institute of Education and Training. Similarly, to further boost reading habits, a national digital library for children and adolescents is proposed to provide quality books in various local languages. To address the challenge of last mile connectivity, education has also been included in the program for aspirational blocks. Women's education under the Samagra Shiksha and overarching school education program under the National Education Mission have been provided 37,453 करोड़. फोकस कहाँ पर है? टीचर्स के ट्रेनिंग पर भी फोकस है. किसके जरिए से? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के जरिए से और ट्रेनिंग के जरिए से. सिमिलरली बूस्ट करने के लिए रीडिंग हैबिट्स, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के लिए जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाया गया है, और एडोलेसेंस के लिए और चिल्ड्रंस के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का बनाने का भी जो प्रपोजल रखा गया है रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए. अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो चैलेंज है उसको एड्रेस करने के लिए एजुकेशन को इंक्लूड किया गया. प्रोग्राम एस्पिरेशनल ब्लॉक के प्रोग्राम में इंक्लूड करा गया. महिलाओं की जो शिक्षा है वो समग्र शिक्षा के अंतर्गत एक ओवर आर्चिंग स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम है, जो ये उस नेशनल एजुकेशन मिशन के तहत उसको 37,453 करोड़ रुपए एलोकेट करे गए हैं. 37,453 करोड़ रुपए. वो कौन से प्रोग्राम को? वोमेन एजुकेशन के प्रोग्राम को, जिसका नाम है समग्र शिक्षा, जो कि एक ओवर आर्किंग स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम है. और वो प्रोग्राम समग्र शिक्षा नेशनल एजुकेशन मिशन के तहत आता है. उस प्रोग्राम के लिए 37,453 करोड़ रुपए एलोकेट करे गए. बजट हैज़ ऑल्सो प्रपोज टू सेट अप 3 सेंटर्स फॉर एक्सेलेंस for artificial intelligence (AI) at top educational institutions. This would help connect industry with academics and help evolve an ecosystem for AI. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youths within the next 3 years on job training, industry partnership, and alignment of courses with industry needs would be emphasized. As per the commitment for inclusion, the budget 23-24 laid emphasis on skilling artisans. PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, PM विकास V for विश्वकर्मा, Ka for कौशल, S for सम्मान. PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान विकास would enable artisan and craft people with focus on quality, scale and reach of their products. For promoting green mobility while integrating them with the MSME value chain. Besides financing, it would encompass skill training, knowledge of modern digital technique and efficient green technologies on the production side, and brand promotion, linkage with the local and global market, digital payments and social security on the marketing side. प्रधानमंत्री कौशल पहला क्या बताया कि बजट को में 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेटअप करने की प्रपोजल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर. 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर AI के लिए.
ये हेल्प करेगा कनेक्ट करने के लिए इंडस्ट्री को एकेडमिक्स के साथ और डेवलप करने के लिए इकोसिस्टम एआई के लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करा जाएगा यूथ्स, लाख्स ऑफ यूथ्स को स्किल करने के लिए नेक्स्ट 3 ईयर्स में। ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्री पार्टनरशिप और कोर्सेज का अलाइनमेंट इंडस्ट्री ज़रूरतों के हिसाब से उस पर फोकस करा जाएगा। कमिटमेंट के अनुसार इंक्लूजन के लिए बजट 23-24 में वो आर्टिसंस की स्किलिंग पर एम्पेटस दिया जाएगा। प्रधानमंत्री विकास, पीएम विकास जो योजना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत आर्टिसंस, क्राफ्ट पीपल को क्वालिटी, उनकी क्वालिटी डेवलपमेंट पर, स्केलिंग पर, उनके रीच, जो उनकी प्रोडक्ट्स की रीच है उसको फैलाने के ऊपर फोकस करा जाएगा, ताकि इंटीग्रेट करते हुए एमएसएमई वैल्यू चेन को फाइनेंस किया जाए। बिसाइड्स फाइनेंसिंग इट would encompass skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies on the production side, and brand promotion, linkages local and global markets, digital payments, and social security on the marketing side. Green growth. India has taken a number of measures towards green growth and declared its nationally determined contribution for net zero emission by 2070. इंडिया ने बहुत सारा मेजर्स लिया है ग्रीन ग्रोथ के लिए। इसका इसको डिक्लेयर कर दिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन नेट जीरो इमिशन 2070 तक नेट जीरो इमीटर बन जाएगा इंडिया, ऐसा डिक्लेरेशन दिया है इंडिया ने। एक्सपांडिंग द आइडिया ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, LIFE, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट LIFE. इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स फॉर्मली फॉर Panchamrit, 5 nectar element for India's climate action. 5 nectar elements for India's climate action. Panchamrit and zero net carbon emission. The budget has elaborated some of the programs that include green fuel, green energy, green farming, green mobility, green building and green equipment. तो जो बजट ने इलाबरेट किया कुछ प्रोग्राम्स को, जिसमें ग्रीन फ्यूल है, ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन फार्मिंग है, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग और ग्रीन इक्विपमेंट है। ये बात करता है इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन स्ट्रेटजीज के ऊपर। द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन with an outlay of 19,700 crore is planned with a target to reach an annual production of 5 metric ton 5 million metric ton MMT है ना, तो 5 million metric ton by 2030। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, जिसमें एलोकेट कितना किया गया, 19,700 करोड़ रुपए डाले गए हैं। उस प्लान किया गया कि टारगेट है कि रीच करेंगे, कितना रीच करेंगे, 5 मिलियन मेट्रिक टन को रीच करेंगे 2030 तक। बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस would also be encouraged to launch a green credit program which would be notified under the Green Protection Act. Central and state government department are also being encouraged to scrap old vehicles. यानी जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको एनकरेज किया जाएगा कि आप ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लॉन्च करें। यानी ग्रीन क्रेडिट मतलब क्या, उन लोगों को आप लोन दो ना जहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स ग्रीन एनर्जी को डेवलप करें, ग्रीन फ्यूल को डेवलप कर रहे हैं, ग्रीन फार्मिंग को डेवलप कर रहे हैं, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन इक्विपमेंट, इन चीज़ों में आप लोग को फाइनेंसिंग करना है। तो इसके लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को आपको एनकरेज करना ही होगा। तो इसके लिए जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को नोटिफाई, इट वुड बी नोटिफाइड अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उनको भी एनकरेज किया जाएगा कि आप जितने भी पुराने डीजल पेट्रोल के गाड़ी चल रहे हैं उन सबको स्क्रैप करवाओ। सो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एनकरेज किया जाएगा कि स्क्रैप द ओल्ड व्हीकल्स। फॉर प्रमोटिंग ग्रीन मोबिलिटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन GST पेड कंप्रेस्ड बायोगैस हैज बीन एग्जम्प्टेड। ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए जो एक्साइज ड्यूटी है GST पेड कंप्रेस्ड बायोगैस पर, उसको एग्जम्प्ट किया जाएगा। GST पेड कंप्रेस्ड बायोगैस हैज बीन एग्जम्प्टेड। दिस वुड हेल्प इन अवॉइडिंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन ब्लेंडेड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। It is also proposed to exempt custom duty on import of capital goods and machinery required to manufacture lithium-ion cells for batteries used in electric vehicles. यानी ये भी हेल्प करेगा कि जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट है टैक्सेस का, ब्लेंडेड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर, उसको अवॉइड करने के लिए हेल्प करेगा। और ये प्रपोज किया जाएगा कि जो कस्टम ड्यूटी है कैपिटल गुड्स और मशीनरी पर जो लग रहा है वो हटाया जाए, वैसे मशीनरी पर जिससे कि आप लिथियम आयन बैटरीज को बना रहे हो, लिथियम आयन सेल्स को बना रहे हो बैटरीज के लिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल करे जाएंगे। PM प्रणाम, a new scheme
is also being launched to incentivize state and union territories to promote uses of alternative fertilizers. Besides, 500 vests to wealth plants would be established under the Govardhan scheme to promote circular economy. पीएम प्रणाम एक नया स्कीम है जो कि लॉन्च किया जा रहा है स्टेट्स को, राज्य को इंसेंटिवाइज करने के लिए और यूनियन टेरिटरीज को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को प्रमोट करे. 500 वेस्ट से वेल्थ प्लांट को इस्टेब्लिश किया जाएगा गोवर्धन स्कीम के तहत सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए. एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन की बात करें तो इन एग्रीकल्चर सेक्टर द बजट हैज़ proposed digital infrastructure for modernization and market connect strategies. Enhanced credit support for farmers is also well recognized. The agriculture credit target is increased to rupees 20 lakh crore with focus on animal husbandry, dairy and fisheries. एग्रीकल्चर सेक्टर में बजट ने प्रपोज किया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए और मार्केट कनेक्ट स्ट्रेटजीज के लिए, यानी क्रेडिट सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा फार्मर के लिए, खेतियों के लिए, और उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दिया जाए खेती किसानों को. एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट का वो बढ़ गया है 20 लाख करोड़ तक बढ़ गया है, जिसका कि फोकस है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी के ऊपर. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए सेटअप किया जाएगा एक ओपन सोर्स के तहत, ओपन स्टैंडर्ड्स और इंटर ऑपरेबल पब्लिक गुड के तौर पर. इसका एम है कि बेटर क्रॉप प्लानिंग, इनपुट मैनेजमेंट और क्रॉप एस्टिमेशन, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक इकोसिस्टम को पुश किया जाए ताकि जनरेट जॉब अपॉर्चुनिटी को जनरेट किया जा सके. एक इन्वेस्टमेंट 2516 करोड़ का प्रपोज किया गया बजट में ताकि स्ट्रेंथन करे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को और 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को. An agriculture accelerator fund would be established to encourage agri startup, promoting entrepreneurship by youth in rural areas. तो ये हो गया मेरा पहला पार्ट, जिसके अंदर में इस टॉपिक के अंदर में कौन सा टॉपिक है भाई, ये है कि सोशल सेक्टर एलोकेशन एंडीवर फॉर इफेक्टिव आउटकम्स, यानी सामाजिक सेक्टर पे कितना कितना इन्वेस्टमेंट डाले जा रहे हैं, क्या एफर्ट है, इफेक्टिव आउटकम्स क्या होने वाले हैं बजट के अंदर में. स्पेशल आर्टिकल था, इसका पहला पार्ट मैंने कवर किया. अगर आपको वीडियो सही लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. दिस इज लकी लोग साइनिंग ऑफ.